Good afternoon, everyone. Hi, uh, welcome to another webinar session. Welcome to all. To discuss about today's webinar, our webinar agenda is importance of IST GSTIN for fashion retailers. So to discuss this webinar, we have our esteemed speakers and panelists. Let me introduce Mr. Vinay Luthra, business at Ismay GST. Mr. Gagan Mendiratta, Senior Team Leader, Ismay GST Support. Mr. Ankit Kumar, Executive, Ismay GST Support. And Mr. Gurdeep Singh, Executive, Ismay GST Support. So I'm welcoming all the speakers to start with today's webinar. And please on your webcam to discuss about the same. Thank you. Thank you, all of you, to present for today's webinar. Thank you. Thank you, Bikram, for introducing us for the today's session. Let me share my screen. Can you acknowledge that my screen is visible to everyone? Yes, it's visible. Bikram, thank you. So, good afternoon, everyone. Once again, welcome for this small session for ISD GSTN topic, which is basically importance of ISD GSTN for our retailers. So, along with me, my colleague Gagan is also here in the webinar, who will be presenting the working on ISMA GST about ISD GST return, that how we managed to do filing in GST for ISD GST through Ismay GST, and how we prepare your data for ISD GST. So for before that, I would like to give you some thoughts regarding ISD returns. For example, today's agenda. So the first agenda which we want to cover is understanding of ISD, because we all know the regular GSTN very well. We all know the different type of returns filing, but few of us, although ISD is a pre GSTN concept, still so as I mentioning, the agenda is basically we will start with small introduction of ISD. Then we will catch up the registration process, how we can register for ISD return. This is also important because many of our users are not aware about the difference between registration of normal GST versus ISD. Then we will try to cover the basic advantage why a person need ISD return, why a company or retailer who is operating in different state will require ISD return. What are the key advantages? I will try to explain all these advantages. Then I will give you the working. My colleague Gagan will show you the working, how Ismay GST team will help for returns, how we can prepare your returns in Ismay GST, how you can comply toward ISD returns, and how you can claim the input and distribute the input other at different branch level. This will be covered under a live session of Gagan. Later on, we will try to cover a small reconciliation, which is your ISD reconciliation with your 6A data, which is also very important for you to know the mismatch invoices for ISD invoices. So that is also part of our live session. To begin the today's session, I would give you small brief regarding Ismay GST. So many of us already are user of Ismay GST. Still, for those who are not aware about Ismay GST, so it's a Genesis One product. So basically, Genesis One is India's finest POS solution. So under this ERP only, we are a small setup of GST solution. We are providing services for GST returns, starting from returns like GST R1, 3B, or your annual returns, or your GST reconciliation, or reconciliation of your e-invoice, or reconciliation with your 2A or 2AB data. So entire
GST compliance requirement is covered under our GST module. Those people which are already aware that we are directly connected with Genesis ERP, so we provide the integration benefit for GST returns. Not only Genesis ERP, we also will be integrated with other ERPs through API integration. We have already a connector built for different ERPs. So if you are willing to use our services with integration benefit, you can use for GST returns. We have other two modules also, which is named as e-document, which covers e-invoicing and e-bill. So although this is a part of your accounting package or your ERP package, still if you are looking for a dedicated APIs or mechanism where a button system will be provided to your accounting system, so that you don't need to manually work and your e-bill and e-invoice can be created, then in that case you can use our EaseMyGST services. So EaseMyGST services will try to like basically provide you other features also. For example, we have a dedicated team of support which can help you in your return filing, which can help you in your operation activity. For example, if your team has a operation team has a query regarding e-invoice, e-bill, so we have dedicated resources to help all these modules. So just want to highlight that we as a group, EaseMyGST as a group services now covering pan-India clients, starting from, if you can say, a client like the Grand Hotel, which is in LA, and to the southern part of India like Kalyan Silk. So we are circulated our services throughout the India. So we have ample experience to serve at a different languages also. So our support team has been designed in such way that we can give the solution at a very speed level. To summarize the main agenda of today's session, which is basically input service distributor, which is not a very new concept. It is a service pre-COVID, pre-GST regime concept, where earlier in a service tax we talk about input service distribution, but after this ISD return has been slightly changed. This is basically ISD return, and the change happen pre GST and post GST, which is basically ISD now will cover as under a one PAN. Earlier people are using this ISD for different companies also, but now for as per GST norms, under a single PAN you can distribute your input to different branches. So I have summarized this as this. I means input, which is your GST input. S means your service, which is your service invoice. So the key benefit of ISD return is this can basically distribute your services towards your branches. So earlier we used to say like that this particular service is applicable to this branch and this service is applicable to this branch, but this lead to a mismatch in your accounting. This lead to loss of your input. So this can be summarized by distribution to different branches. So if user can avail this ISD GSTN, it can basically handle the different input which he is getting at different branches. So in a nutshell, what type of services we usually see at a store level? For example, security services are there, communication charges are there, courier expenses, housekeeping expenses, accounting services, or a software services. So for the best example is EaseMyGST services itself. So if a user of EaseMyGST is registered for different state, they can take a single bill from EaseMyGST, and that input they can distribute at different GST level. So they just need to register for ISD GST, then later on they can same input can be distributed at for different branches where they are using EaseMyGST as a GST filing software. So this is a just brief regarding what is ISD.
To give you more understanding with one small example, let's say I have a two vendor which are sending a bill to HO. There's only one single bill, and in the most of the case in HO, you will find that your output tax liability is always less as compared to input, because a lot of vendor are sending a lot of bills to only registered HO. Now we come up a very difficult situation which is called unutilized input. To rectify this only, the ISD concept can be used. So what ISD invoices will be used as this: HO will issue ISD invoices to different stores. These stores can claim now the input as per the proportionate turnover. So this concept distributing input from your vendor directly to your store by making ISD invoices is a perfect example for saving your input, and this is a perfect example to take ISD GST. Let me summarize few advantages to take this ISD GST. As I already mentioned that this will give you centralized accounting system, because earlier till now you are might be taking a bill at HO only, might be taking bill at your main location only, but you might be distributing input or your under your GST 3B manually by different filing. But if you are taking ISD GST, then in that case your accounting and billing payment to a vendor can be centralized by GST ISD invoices, which your HO will be issuing to your different branches. So this is centralized accounting is the biggest benefit. Centralized payment system will be a additional benefit. Reduction of overall tax burden, because as I mentioned that most of the case HO is not going to have a very high output supply liability. So most of the case store has a higher tax liability. So this higher tax liability can be reduced by segregating the input at through the ISD method only. So what we want to show you that this ISD not only reduce your tax burden, it will also complete your compliance, because in 2014 finance bill proposed amendment, which is when rejected by government, but it has been proposed that ISD return should be mandatory who is having a more than 2 GST. So right now government is not giving this as a mandatory solution, but in later on stages when things going to be smooth at a GST level, then this will become as a mandatory statutory requirement to have a ISD returns. Let me come to the registration process. So there is a small change in registration process. If you are already registered as a normal taxpayer, you need to again register for ISD registration with the same form called as a GST registration 01 REG 01. You don't need to require to tell the turnover for this registration, and you just need to mention in a serial number 14 that this purpose of your registration is your ISD, where you want to distribute the tax at a branch level. For this ISD, you have to file a one return also, which is your GSTR 6. So how you can file the GSTR 6, which will be covered under our live demonstration. After this presentation, my colleague will show you the entire working of GSTR 6. But just want to highlight you that all the invoices which you are going to file for GSTR 6, you can file before 13th of the every month, because as per the your vendor will file this invoices, will provide you invoices, and this will be reflecting in your 6A. So if you fetch the 6A, you will get all the invoices where vendor has issued you ISD invoice. So you can fetch all the invoices in GSTR 6A, and you can as per your books which you want to maintain for, because you are going to issue ISD invoice, you are going to issue one series of ISD invoice. So you can reconcile the invoices which invoices you have captured in your accounts, same with your GSTR 6A, and you can see the mismatch also. And same GSTR 6 invoices will be you need to
file before the 13th of the month. What you need to mention this in GSTR 6, basically the credit received from the service provider, which is the same which has come under a GSTR 6A, and the credit distributed as per the turnover which you are going to declare during GSTR 6 only. So which means during the filing, whatever the input you have received from your suppliers, you are going to tell under a GSTR 6 only as per your branch turnover, what is the distribution input you want to share with your branches. So this entire process is covered under a GSTR 6. There are a few limitation also. For example, ITC available in this month can be distributed in the same month. So you cannot skip for a previous month. So this is a very strict requirement from the government that any ITC available for this particular month has to be utilized in this month only. And there are few like pre-filled validation given by the government ITC, which you are going to be claimed in the GSTR 6, and the ITC total distributed towards a branch. It should be absolutely matched. This two requirement is very much in place during your GSTR 6 filing only. So all the invoices which you are going to tell in GSTR 6 will automatically be seen in your supplier GSTR 2A. So entire GSTR 6 and 6A period 6A filing should be can be done in EaseMyGST, and all these options can be utilized in EaseMyGST. We will show you one by one how you can do working of your GSTR 6 and 6A. This is an important concept, which is basically distribution of input tax. As I told you, entire input tax will be given to HO, your main location. Then you need to circulate it to different branches. But this has to be done with some formula, some rules. So we have a dedicated template where we have mentioned all the rules. Based on that, you need to distribute. Just to give you overview, any branch which has used any services where the bill has been provided to HO, if that in case, the entire input will be visible to distributed to that branch only. You cannot distribute input where the branch is not used in that service. So the concept of common services is applicable here. The common services, for example, any Airtel bill is provided to HO for all the state, but for one state, Airtel is not installed at one branch. In that case, that branch cannot avail that input, because the condition is that distribution has to be on an actual usage basis. So if one branch has been using the same input, then entire input will be can be claimed by that branch only. Similarly, if the case of two distribution is there, then the ratio of distribution will be depend upon the turnover. Let's say two branches having a usage of one common services, and HO want to distribute that input, that need to be based on the previous year turnover, or if turnover is not available, last quarter revenue, last quarter their total estimate sales. Based on their ratio, the HO can distribute the input tax. If all the branches are using the common services, in that case, it will be based on the turnover, and this proportionate ratio can be distributed as tax wise. For example, CGST can be availed only at CGST and IGST. SGST input can be only can be availed as SGST and IGST. IGST input can only be availed at IGST. So this criteria need to be followed while preparing your calculation. So we have one small calculation chart where this formula is already incorporated, where you can calculate the input which you want to give to the branch. This is calculated turnover of that branch divided by the total turnover of the company, multiply the total input received for the month.
So this formula is through this formula you can identify the total input for that particular branch. So this entire calculation and this entire rules again will be presented during our live demonstration. Coming to the situation where input is basically ISD input is not applicable. Number one, in a case of capital good, which is very important, it is only for the service invoices. You cannot use ISD mechanism for the capital goods. It is only for the input services. You cannot claim for RCM services because you know already that for RCM you are paying the taxes in behalf of the supplier. So in that case, RCM services is not covered under ISD. And any outsourced services where the services of outsourced service of manufacturing or service providers also is not a part of ISD returns. So I hope my small presentation will give you some idea regarding ISD. And for now, I would request my colleague Gagan to present the screen so that this all theoretical knowledge or theoretical jargon can be easily understood during a live working. So over to you, Gagan. Kindly show the presentation. Let me stop my screen. Okay, so yeah, so thank you, Mr. Vinay, for giving the brief on the ISD presentation, where we have seen that how to register the ISD GSTN, or we have seen that how we can ease the benefit, means how we can ease the working of ISD through using the Ease My GST, also the laws of ISD, right? So let me share my screen and give you the understanding where just a minute. Screen share. Vinay, you need to stop the screen. So I'm sharing my screen where I have managed or maintained all the demonstration, all the sample data for you guys. So let us just connect the screen. I hope my voice is clear. Okay. So I have some of the files written here. First one is how to distribute the ISD, right, through Ease My GST. Second one is what is ISD GSTs and what are the invoices which are auto-populated in ISD, right? And what are the invoices which we need to upload in ISD, which is called as GSTR 6, right? And there's one there's one simple calculation for ISD credit distribution where we will learn about how to calculate the ISD, right? Those who are not able to understand, or those who are not able to give the graphical pictures about what is the ISD calculation according to the turnover, right? So I have given you the simple classification for that thing. So okay, so we will go with the Ease My GST first. कि अभी हम देखेंगे कि हमने मैं अभी अपनी जो पिच है मैं डिफरेंट उसमें करता रहूंगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भी हमारे ऑडियंस हैं सबको समझ आए कि आईएसडी कितना इजी है, कितना कैलकुलेशन करना कितना इजी है। क्योंकि अभी जो हम आज के टाइम पे देखते हैं, अभी के टाइम पे क्या होता है कि आईएसडी का जितना रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। अभी इतना ज्यादा आईएसडी का रजिस्टर लोगों ने नहीं किया ड्यू टू द माइट बी एज पर माय थॉट ड्यू टू द वर्किंग, क्योंकि उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो जस्टिफिकेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो एक काफी ज्यादा लेंथी पार्ट है और डिफिकल्ट पार्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको अभी शो करूंगा। इससे पहले हम आ जाते हैं कि ईज माई जीएसटी पे हम आईएसडी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप जितने भी ईज माई जीएसटी यूजर हैं उन सबको पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि हम पैन लेवल पे डेटा मैनेज करते हैं, पैन वर्किंग करते हैं। इस पैन में मैंने आपके लिए एक आईएसडी का पूरा प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए पूरा एक सैंपल डेटा उस तरीके से रेडी किया हुआ है। अभी मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए आईएसडी के पास लेके जाता हूँ। ये मेरा एक आईएसडी का जीएसटीएन नंबर है तमिलनाडु। मैंने एक एज अ सैंपल मैंने तमिलनाडु की सर्विसेज को लिया, जिसमें मेरा जो आईएसडी का जीएसटीएन है वो तमिलनाडु से रजिस्टर्ड है। नाउ
इफ यू गो टू द रिटर्न्स पार्ट, GSTR 6 जिसको हम बोलते हैं विच इज ISD, तो सिंपल से 4 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या करना होता है ISD में, इज माई GST के थ्रू। इसमें क्या रहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि आपके लिए फरवरी मंथ ओपन कर देता हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ है। सो पॉइंट इज, अपलोड सेक्शन में क्या रहता है, आपके पास 2 चीजें होती है जिसको आपको अपलोड करना होता है, राइट। फर्स्ट वन इज ISD के इनवॉइसेस जो मेरे को सामने वाली पार्टी ने एज अ सप्लायर मुझे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे पूरा अपलोड कर देता हूँ ISD के इनवॉइसेस। सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। इन दोनों के अपलोड फॉर्मेट इज माई GST पे अवेलेबल है, या फिर आप अपना इंटीग्रेशन के थ्रू लाना चाहें तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी ला सकते हैं। सेकंड, मैं आपको अगर बताऊं, हमारा एक व्यू ऑप्शन है जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं कि मेरे कितने कितने इनवॉइसेस अपलोड हुए, कैसे कैसे इनवॉइस अपलोड हुए। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि क्या क्या इनवॉइसेस होते हैं, क्या एग्जाम्पल चीजें क्या होती है, तो मैं आपके लिए एक एक्सेल ओपन कर देता हूँ जिसमें मैंने सैंपल इनवॉइसेस को कुछ आपके लिए रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है जिसमें मैंने एक एक्सेल ओपन करा है। आप अभी देखना चाहेंगे, देख रहे होंगे कि मेरा एक GST नो टैक्स पे, दिस इज माई GST जो जिसपे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। सेकंड, मेरे जो पार्टी ने मुझे GST जिस GST से बिलिंग करा वो मैंने GST मेंशन किए हैं, प्लस पार्टी ने मैंने कुछ डमी GST और डमी काउंटर पार्टीज के नाम रखे हैं, जिसमें सप्लायर की इनवॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो मेरे को पूरे मंथ में, फरवरी मंथ में मेरे को इतने इतने इनवॉइसेस मिले जिसपे टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेस प्रॉपर नॉर्मल तरीके से रहेगा, जैसे आप अपनी GSTR 1 में इनवॉइसेस को अपलोड करते हैं। इसमें कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, ये सिंपल रहता है। इसमें डिपेंड करता है कि आप मतलब किस मंथ में आपके पास IGST से भी बिल आया या फिर CGST से ओनली आया। तो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने आपके लिए आज रखा है, जिससे कि कुछ लोगों को डाउट है, कुछ क्वेरीज आई थी कि सिर्फ आप लोग GST का ही मैनेज कर सकते हैं या फिर IGST को भी बता पाएंगे कि कैसे IGST को ऑटो पॉपुलेट करना है, किस किस कॉलम में हमें फिल करना है। तो IGST और CGST दोनों मैंने इसमें रख दिए। अब मैं आपको आगे का एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये तो हमारा था कि ISD का इनवॉइसेस, नॉर्मल इनवॉइसेस क्या हम अपलोड करते हैं। सेकंड हमारे पास रहता है कि ISD, ये जो ISD है दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैंने अलग से एक शीट आपके लिए रेडी की हुई है विच इज दिस वन। तो अभी मैं आपको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की शीट, इसके बाद एक बार आपको समझाऊंगा कैसे मैंने अपनी सिंपल वर्किंग से डिस्ट्रीब्यूशन की शीट को बनाया और कैसे यहाँ पे इसमें ऑटो फिल करके अपलोड करा। ठीक है, वही हमने यहाँ अपलोड करा। सेकंड जो हमारा थर्ड स्टेप रहता है, थर्ड स्टेप हमारा सिंपल सा रहता है कि जो हम 6A को गेट करते हैं और उसका रिकंसिलेशन करते हैं। Now here the point is this is the 6A which is getting auto populated from the government portal directly when you are filing the GSTR1, when the suppliers file the GSTR1 on due date of on or before 11th of every month, right? After that we will be having a GSTR6A data. We have to fetch the GSTR6A data. So let's suppose this is fetched on the 12th of the month, right? Because you have to file your return, GSTR6 return on 13th of every month, right? So the logic behind this is that you cannot get the 6A data before 11th, because 11th is the date of due date of GSTR1 filing, right? Understood? So ये हम अभी क्यों करते हैं, why this is required in the GSTR6 और GSTR6 का reconciliation? Because आप जो भी लोग ISD यूज करते हैं और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ISD की फाइलिंग अगर हमें करनी है, that will not be processed without the reconciliation part. हम reconciliation के बिना उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एरर शो करेगा। रीजन बीइंग, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम मैच कैटेगरी में जाते हैं, राइट, ये सारे मैच कैटेगरी के इनवॉइसेस आ जाएंगे। मैच मींस ऑल द सप्लायर, ऑल द परचेजर डेटा विल बी अपलोडेड इनटू द गवर्नमेंट पोर्टल, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ मिसमैच कैटेगरी को देख लेते हैं, जिसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं। दिस इज द नेसेसरी पार्ट you have to do कि हम आपको ऑप्शन देते हैं। Let's suppose if you want to upload this one, right, but you have to take the action on this invoice number, whether you want to take the save uploaded data, save uploaded invoice number means the invoice and the amount which you have uploaded in your this GSTR6, or you want to accept the invoices which has come into the GSTR6A,
राइट। सो दिस इज द मेन स्टेप। आप इसको एक्शन लेके आगे जा सकते हैं, आगे जाना चाहिए आपको। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे इनवॉइसेस होंगे जो सप्लायर ओनली मींस जिन्होंने फाइल कर दिया बट आप यू डू नॉट वांट टू टेक इन द इनपुट, और आपके पास वो अभी इनपुट में नहीं है, मतलब उनका आप अभी क्लेम नहीं कर सकते हो, आईएसडी नहीं उसको आपने अभी फिल नहीं करा है वो इनवॉइसेस। तो उस पर भी हम आपको एक्शन देते हैं कि आइदर यू वांट टू सेव द सप्लाई डेटा और यू वांट टू रिजेक्ट, राइट। और थर्ड वन इज यू वांट टू डू इट एज अ पेंडिंग। पेंडिंग हमें क्या, पेंडिंग का क्या करना होगा कि पेंडिंग अगर हमने मेंशन कर दिया तो हम उसको बता रहे हैं कि अभी हमको ये क्लेम नहीं करना है, हाँ नेक्स्ट मंथ में अगर वो फाइलिंग में अगर मैं अपने उसमें वो अपलोड कर देता हूँ तो ये नेक्स्ट मंथ में भी मुझे दिखाएगा। अगर मैं लास्ट मंथ का डेटा कोई भी इनवॉइसेस को पेंडिंग में क्लियर कर देता हूँ, पेंडिंग क्लिक कर देता हूँ, तो मैं जब नेक्स्ट मंथ का रिकंसिलेशन करूंगा तो वो लास्ट मंथ में जो मैंने पेंडिंग किया था वो मुझे नेक्स्ट मंथ में भी शो करेगा इनवॉइस नंबर। सो उसके बाद परचेज डेटा है। परचेज डेटा को आप अपने अपने हिसाब से जो मैंने परचेज डेटा अपलोड करा है वो मुझे अपलोड करना होता है, तभी मैं अपने पूरी आईटीसी को जो भी जितने मेरे इनवॉइसेस हैं उनका प्रॉपरली आईएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच कर पाऊंगा। उसके बाद एक लास्ट स्टेप रहता है जो अब अभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसमें आपको समरी जनरेट करना है। समरी जैसे आप बटन पे जनरेट करेंगे इस पे आपको क्लिक करना है और समरी जनरेट हो जाएगी। आप समरी जनरेट करेंगे, आपकी जो समरी आएगी वो दो चीजों के बेस पे आएगी। फर्स्ट वन इज द इनवॉइसेस विच आर on the which you have uploaded the invoices into इसमें GST जो इनवॉइस लेवल पे आपने अपलोड करा है। सेकंड जो समरी आएगी उसका आईएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन को अपलोड किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है ये मैच होना चाहिए जितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब ये पूरा मैं समरी में शो कर देता हूँ जिसको हमें सेव टू जीएसटी करना होता है, जिसके के बेसिस पे आप का जो नेक्स्ट स्टेप है वो एनेबल होता है विच इज क्रॉस यूटिलाइजेशन, आईटीसी यूटिलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन स्टेप ये रहता है आपका कि क्रॉस आईटीसी यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि क्रॉस आईटीसी यूटिलाइजेशन, राइट। तो क्रॉस में अभी मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट सिंपल रहेगा। इस चीज की मैं आपको अभी बिलीव कराता हूँ कि आईटीसी क्रॉस होगा, यानी कि जितना आपने अपलोड करा और जितना आपने आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करा दोनों में क्रॉस मैचिंग होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे आईटीसी टोटल अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना शो कर रहा है, ठीक है, और अगर आपका नीचे जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अगर वो मैच नहीं करा तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो अमाउंट है वो ऊपर वाले आईटीसी अवेलेबल के साथ मैच करता है। अभी मैं इसको डिटेल में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा गैप देता हूँ यहाँ पे कि ये तो था हमारा प्रोसेस जिसको हम जिस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है आईएसडी का और किस तरीके से हम अपनी रिटर्न्स को दिखा सकते हैं। यहाँ पे अब आपको जो हमारा आज का मेन एजेंडा है उस पे अगर मैं आपको लेके जाऊं विच इज क्लासिफिकेशन और विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएसडी, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए इस पे हम दोबारा से आएंगे इस चार्ट पे। आपके लिए मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन की शीट रखी है जो मैं अभी आपके सामने ओपन कर चुका हूँ। ये क्या चीज, ये मेरा जो थॉट था कि इस वेबिनार के लिए आज के लिए हम ये चाहते हैं कि कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो आईएसडी की डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आईएसडी का जीएसटी नहीं लेना चाहते या फिर कुछ वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द कैलकुलेशन बेनिफिट, कि उनको कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं उसके लिए मैंने एक सैंपल फाइल रेडी करी है। अगर आप इस वेबिनार के बाद मैं आप सबको एक्सेल शेयर भी कर सकता हूँ जिससे कि आप इसमें एज अ डमी डेटा डाल के आप चेकिंग करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा किस हिसाब से कितना आईएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए इस शीट के मैं आपको एक शीट समझाता हूँ। आई थिंक माई शीट इज विजिबल, या फिर मेरे को थोड़ा जूम करना है तो प्लीज एक बार बता दीजिए। आई थिंक जूम की जरूरत नहीं है। विजिबल है, विजिबल है। ओके, सो द पॉइंट इज इस शीट में मेरे पास दो पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट अभी आप देख रहे हैं विच इज इनवॉइसेस बाय द सप्लायर ऑन माय आईएसडी जीएसटी, यानी कि जितने आईएसडी जीएसटी के मेरे पास सप्लायर ने इनवॉइसेस शो करे। मैं आपको फिल्टर हटा देता हूँ और ये वाले इनवॉइसेस मैंने शो करे जो मैंने सेम इनवॉइसेस मैंने अपलोड करे हैं जीएसटी 6 की रिटर्न में, राइट। यही मेरे इनवॉइसेस हैं जो मुझे मिले हैं। अब मैं एक पार्ट मेरा ये रहेगा
जिसमें आपके पास, जिसमें मैंने ये दोनों इनवॉइसेस को रखा है, जिसमें आईजीएसटी अमाउंट भी रखा हुआ है और सीजी अमाउंट भी रखा हुआ है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसमें कि यानी कि दोनों इंटर भी हैं और इंट्रा भी बिल्स मेरे पास अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट आपका जो रहेगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा रेवेन्यू से, जो विनय जी ने आपको अभी रिमाइंड होगा कि विनय जी ने आपको बताया था कि आईएसडी को कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि अगर मैंने मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब फॉर एग्जांपल मैंने 12 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब 12 स्टेट्स में मेरा जीएसटी का रेशियो है, और मैं फॉर एग्जांपल कोई एयरटेल की सर्विस है, अगर मैं वो सर्विस किसी 10 जीएसटी के लिए ही यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं जो अपना आईएसडी को या जो आईटीसी को जो कैलकुलेट करूंगा ना, वो उन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओनली फॉर 10 स्टेट्स। मैं बाकी दो को इस चार्ट के अंदर कवर नहीं करूंगा उसके लिए, क्योंकि मैं उस सर्विस को या फिर उस बिल को मैं उस स्टेट के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे पौंडीचेरी को एक एग्जांपल रखा हुआ है, पौंडीचेरी में आपके पास 0% ऑफ दी कैलकुलेशन आया है, जिसमें से आप समझ पा रहे हो कि 0% मतलब मैंने इस पूरे इनवॉइसेस में ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो पौंडीचेरी स्टेट के लिए मैंने यूज की है, राइट। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस पूरी स्टेट शीट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने परसेंटेज डिवाइड किए। जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट चीज है और जो एक रूल फॉलो करना होता है हमें क्लासिफिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यही रहेगा, जिसके बेसिस पे हमने परसेंटेज किस बेसिस पे हमने निकाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। छोटी सी फटाफट एक बार आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमने स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा है आईएसडी का अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू विच इज टर्नओवर। तो मेरा जो रेवेन्यू है उस पर्टिकुलर स्टेट का डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स इनटू जो मेरा इनवॉइस नंबर है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर इस परसेंटेज की बात करें तो मैंने आपके लिए शीट स्पेशल रखा है रेवेन्यू डिटेल्स का। रेवेन्यू डिटेल्स में फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीजें होती है रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। अगर मेरा टोटल रेवेन्यू इस स्टेट का इतना आ रहा है, राइट, और मेरा टोटल पूरे पैन का जो रेवेन्यू है वो ये आएगा, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ टोटल, और जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स। उसके बेस पे मेरे पास जो परसेंटेज आएगा उसी परसेंटेज को मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, विच इज रेवेन्यू और विच इज परसेंटेज ऑफ द स्टेट, कि मैंने इतना परसेंट ही इस बिल के अंदर में से इस स्टेट को प्रोवाइड कराना है आईटीसी। जब आप अपने सारे स्टेट्स पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल मेरा जो परसेंटेज है पर्टिकुलर बिल्स का वो मेरा 100% ही आना चाहिए, इसमें कम नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा कम परसेंटेज रहता है तो इसका मतलब मैंने आईटीसी को कम डिवाइड करा, तो वो एरर शो कर देगा और वो फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पार्ट पे कि इनवॉइस वाइज की इनवॉइसेस कैसे आपको शो हो रहे हैं, क्या चीज है। जो कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, कैलकुलेशन मैं आपको एक एग्जांपल की तरीके से दिखाऊंगा कि हम कैसे अपनी कैलकुलेशन को आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूशन शीट में कैसे फिल करते हैं। सेकंड मैं ओपन कर लेता हूं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की शीट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन की शीट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर हम उसको एग्जांपल के थ्रू आपको इस शीट का बताएंगे कि कैसे हमने उसमें जाके आपको फिल करा। ये हमारी इसमें जीएसटी की शीट रहती है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन अपना डालना होता है। अभी मैं सारा एफर्ट आपके लिए ये लगा रहा हूँ कि अभी वैसे आप ये भी कर सकते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप आगे जाएंगे और फिगर्स डाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फिगर्स कैसे कैलकुलेट हुए और यहाँ पे कैसे उसको शो करा, जिसमें से कि ये लॉजिक्स होते हैं। पहला लॉजिक आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी, यानी कि कोई भी आईजीएसटी बिल जो आईजीएसटी में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। सेकंड रहेगा आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, मैंने दोनों को इकट्ठा कवर कर लिया। उसके बाद रहेगा एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एसजीएसटी, राइट। इसका क्या मतलब है मैंने आपके लिए लिखा भी है। You have to fill all the details here in the case where my GSTN is also registered in same state and the party which is giving the services to me and the invoices to me on the same state। तो दोनों का जब सेम स्टेट रहेगा उस केस में आपका जो लोकल बिल होगा, एसजीएसटी का जो बिल होगा और सीजीएसटी जो बिल होगा, वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे शो करना है। इससे मतलब ये अभी काफी ज्यादा इजी आपको अभी समझ आने वाला है जो अभी आपको दिखेगा। जिसके बाद मैंने ऑरेंज कलर से आपको करा है। ऑरेंज कलर में जितना भी लोकल टैक्स होगा एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी,
इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको समझाऊं, जितना भी मेरा लोकल बिल है, मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे मेरे इनवॉइसेस लोकल मेरे पास हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट वाले इनवॉइस को लेके चलते हैं जिसमें सीजीएसटी अमाउंट है 11,126 रुपीज एंड एसजीएसटी अमाउंट ऑल्सो सेम, राइट। तो ये लोकल बिल है। अब इस बिल को मुझे कितना वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैसे शो करना है वो अभी आपको दिखा रहा हूँ कि एसजीएसटी, यानी कि यहाँ पे जो मैंने एसजीएसटी शो करा है आपके लिए, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा एज आईजीएसटी। अब मैंने आईजीएसटी क्यों बोला इस चीज को, वो एक बार समझते हैं। आईजीएसटी का मतलब ये हुआ कि मैं कि अपने स्टेट में, यानी कि मैंने एज अ तमिलनाडु, मैंने बिल तो ले लिया है तमिलनाडु में, अब मुझे वो बाइफिकेट करना है अपने अलग अलग स्टेट्स में। तमिलनाडु से मैं दूसरे स्टेट्स में जब बाइफिकेट करूंगा, विच इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट, मतलब वो कभी भी सेम स्टेट नहीं हो सकता है, तो मैं इंटर स्टेट डिवाइड करूंगा। इंटर स्टेट जहां पे आया उसका मतलब है आईजीएसटी टैक्स लगना चाहिए, राइट। तो ये आईजीएसटी उसका आपको मतलब समझाता है कि एसजीएसटी, जो पहला जो एसजीएसटी है विच इज टैक्स, यानी कि जो एसजीएसटी का टैक्स मुझे लगा के दिया है सामने वाले ने, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ आईजीएसटी में, यानी कि मेरे अपने ही स्टेट के आईजीएसटी में। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। सेम ऐसा ही सीजीएसटी का लॉजिक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम बेसिस पे चलते हैं। उसके बाद येलो कलर में अगेन यहाँ पे मुझे सीजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीजीएसटी, इसका क्या मतलब है, जो मेरा सीजीएसटी टैक्स लगा है बिल में वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ही लोकल स्टेट में, यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन आईएसडी का है। तो ये दोनों कॉलम उसी केस में आपके फिल होंगे। उसके बाद एक कॉलम और आपको बता देता हूँ जो बहुत यही 4 कॉलम्स जो मैंने हाईलाइट करे यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी। अभी मैं सारी लोकल टैक्स की बात कर रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आईजीएसटी अगर हमारे पास बिलिंग है, मतलब इस मंथ में अगर किसी भी मंथ में हमारे पास आईजीएसटी बिल भी आया, फॉर एग्जांपल ये वाले 3 ऐसे इनवॉइसेस हैं जो मेरे को अलग अलग स्टेट्स की पार्टी ने मुझे शेयर करे। अब इन 3 बिल का टोटल जितना भी आपको शो कर रहा है, यानी कि 76946, इनका टोटल ही आप इसी कॉलम में ही डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा कोई किसी कॉलम में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, विच इज इक्वल टू आईजीएसटी का अमाउंट आप आईजीएसटी में ही डिवाइड कर पाओगे, और इसका टोटल आपका मैच होना चाहिए, जो अभी मैच कर भी रहा है 76946। तो ये अमाउंट आपका डिवाइड होके ब्रेक होके, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 बिल थे और यहाँ पे मैंने हर स्टेट में उसको डिवाइड करा है। अब मैं आपको इसका डिविडेंड समझाने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको, मतलब कैसे कैसे मैंने टैक्स को डिवाइड करा। और अच्छा, अभी अभी थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और धीरे जाता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ जिससे कि समझना थोड़ा इजी होगा। कि आपका जो टैक्स है ना, सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है कि आपका जो टैक्स है ये आपने सीजीएसटी में कितना डाला, ये कैसे डाला, या फिर आईजीएसटी में कितना अमाउंट जाएगा, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट ये रहता है। तो मैं अब आपको सेकंड जो मेरा चैनल है उसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो अमाउंट है ये मैंने कैसे निकाला, मैं आपको इस कैलकुलेशन वाली शीट से दिखा सकता हूँ। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले हम चलते हैं आईजीएसटी के बिल पे, राइट। अभी मैंने आपके लिए आईजीएसटी का फिल्टर लगाया हुआ है। मैं इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो सेकंड पार्ट में है कि ये वाला जो फिगर्स है, जो आप इतना सारा फिगर्स आप देख रहे हो, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसका कॉलम का क्या फॉर्मूला है मैं आपको वो बता देता हूँ। विच इज, अगर मुझे पौंडीचेरी में, सॉरी फॉर एग्जांपल मेरे को केरला में इस आईजीएसटी को डिवाइड करना है, इस बिल को, राइट। अगर मैं साइड में जाऊंगा तो मेरे को टोटल टैक्स कितना मिला हुआ है, टोटल टैक्स है 22253, राइट। ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी को मैच करता हूँ, ये टोटल मेरे इस सारे स्टेट्स के टोटल से मैच करना चाहिए, राइट। बिल्कुल ठीक है। इस पूरे स्टेट्स का टोटल जब मैं आपको देखूंगा तो आप लास्ट में ब्लू कलर में देख पा रहे होंगे, इतना ही टोटल यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, मतलब 100 इक्वल टू 100 ही रहना चाहिए, ना ऊपर ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, अभी फॉर एग्जांपल केरला का मैं अगर आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, विच इज, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा, फॉर्मूला कैसे करना है। किसी भी एक बिल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पहला बिल, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, मैं एक बार फिल्टर लगा देता हूँ किसी भी बिल पे, ताकि आपको इजी रहेगा कि एक ही लाइन शो होगी। इसमें आपको ये सीजीएसटी अमाउंट है, राइट।
अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्लस रहेगा। फॉर एग्जांपल केरला, राइट। अब मैं आपके लिए ये फॉर्मूला बार ओपन कर दिया, जिसमें टोटल टैक्स यानी कि जितना भी उस इनवॉइस का टैक्स है, आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये फॉर्मूला शीट में लगाया गया इसलिए आईजीएसटी कवर करा है। वैसे या तो कभी एक बिल में या तो आईजीएसटी होता है या सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। दिस इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सीजीएसटी का अमाउंट प्लस एसजीएसटी का अमाउंट, राइट, और into multiply by the percentage which we have calculated from the revenue sheet, right। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है 559 रुपीज, यानी कि इसका जो सीजीएसटी अमाउंट था 1528 में से मेरे को सिर्फ 18 जो परसेंट का जो मींस जो पोर्शन है, सिर्फ इतना ही डिवाइड करना है, इतने का ही इनपुट देना है केरला वाले स्टेट को। तो आपको अगर इससे समझ आ रहा हो कि मेरे को केरला को कितना देना है, अभी जो आईएसडी जो हम आपको दिखाने मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म होता तो इतना सारा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है कि इक्वली डिवाइड कर देता हूँ हर स्टेट में, बट सब स्टेट का रेवेन्यू अलग है, सब स्टेट्स का टर्नओवर अलग है, कि अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, अपना अलग अलग स्टोर ओपन करके रखा हुआ उन्होंने, कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं उतना उनको इनपुट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मीन्स बिल का। ऐसे ही मैंने जो आपको अभी कैलकुलेशन दिखाया ये पूरे सेल्स में मेरे कैलकुलेशन लगा हुआ है, जिसके बेस पे मैंने हर बिल पे जो पोर्शन वाइज अमाउंट है वो डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे मैंने इस शीट को इन बिल्स के आगे ही उसको डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको कैलकुलेट करना इजी होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे को केरला का या फिर कर्नाटका का अगर मेरे को देखना है तो सबको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको ये पूरी सीरीज को अगर मैं आपको बोलूँ कि इन सब का टोटल मेरे को डिवाइड करके अपनी शीट में डालना है, जो इसमें जीएसटी की शीट है, जिसमें इस पूरे का टोटल मतलब मेरे को इस पूरे एक केरला ये कर्नाटका स्टेट में 29 वाला जो स्टेट है इसमें जितने भी मेरे इस मंथ के इनवॉइसेस थे, सिर्फ इतना ही जो 29316 का इनपुट है, सिर्फ इतना ही मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एक कंसोलिडेट बता दिए कि एक स्टेट का कर्नाटका का मेरे को सारे बिल जितने मेरे को आज मिले इस पूरे मंथ के बिल में से मेरे को इतना ही पोर्शन में कर्नाटका को दे सकता हूँ, राइट, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि अब मेरे को ये जो सॉरी अब मेरे को जो ये 29,000 का जो अमाउंट है ये मेरे को अपनी शीट में यानी कि गवर्नमेंट को मेरे को कैसे देना है, किस किस जगह पे डिवाइड करना है, उसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बेसिस पे मैंने ये कलर बेस्ड थोड़ा सा कलर आउट कर दिए। अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिंपल से अपने सारे स्टेट्स को मेंशन किया हुआ है। आपके जितने स्टेट होंगे उतनी लाइन आइटम होंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को कितने इनवॉइसेस मिले थे, यानी कि मेरे को 20 इनवॉइसेस मिले थे सामने से तो मेरे को ये 20 लाइन आइटम्स डालनी है, नहीं। आपके जितने स्टेट होंगे उतनी स्टेट्स की आपकी जितने स्टेट में आपने डिवाइड करना है उतने स्टेट्स की आपकी ये लाइन आइटम्स होंगी। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आईएसडी का जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर शो करता हूँ वो मेरा खुद का नंबर होता है, जो मैं एक सीरीज अपनी कंपनी में चलाता हूँ अलग से। आप गगन जी एक बार मेरे को एक बार आप ये चीज बताएंगे जो आप ये कह रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट को आप स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो टैक्स का गवर्नमेंट को। ओके, सो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। अभी हम देखते हैं कि आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। तो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ कि अभी हम कर्नाटका की बात कर रहे थे तो मैं कर्नाटका को फिल्टर आउट कर देता हूँ, जिससे कि इजी रहेगा कि आपको शो करने में। तो एक कर्नाटका का बिल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे ही डेमो अकाउंट में यानी कि मेरे को ही मिला। आप देख सकते हैं कि हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए। मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 32 का है, ओ सॉरी 33 का है, और जो मेरे को सर्विस मिली वो कर्नाटका से मिली विच इज आईजीएसटी। ठीक है, अब मेरे पास आईजीएसटी का बिल आएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसका पोर्शन कैसे रहेगा, कितना कितना पोर्शन डिवाइड होना चाहिए। तो इस कॉलम पे आते हैं, फर्स्ट कॉलम पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम तभी एक्टिवेट होगा जब आपके पास उस पूरे लिस्ट में से आईजीएसटी बिल जितने होंगे उतने अमाउंट का वैल्यू ही आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आपको सिंपल सा करते हैं, यहाँ पे एक बार फिल्टर लगाते हैं साइड में कि आईजीएसटी का अमाउंट कितना है किस किस बिल में।
ये मैंने 3 इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लिया, ये 3 में ही आईजीएसटी है। अब मैं ऊपर से जाके देखता हूँ कि कर्नाटका को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपकी इजीनेस के लिए इसको पूरे को कलर आउट कर देता हूँ, जिससे कि आपको देखने में इजी रहेगा। इस पूरे कर्नाटका में हमारे पास 3 बिल हैं। अब उन 3 बिल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख चुका है, कैलकुलेशन भी आपको समझ आ चुका है। ये कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है आपको, इजी तरीके से बस फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर लगाने के बाद जो नीचे अमाउंट आ रहा है आपका, जो इसका टोटल है 7396, ये जाके एज इट इज यहाँ पे आपको देना है। तो ये आपका हो गया आईजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी बिल्स का था उतना मेरे को करना। अगेन मैं इसके पास फिल्टर पे जाता हूँ, जिसमें से हमें सीजीएसटी बिल्स को लेना है, यानी कि लोकल बिल को। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे बिल्स लोकल हैं 33 स्टेट्स के, राइट। अब सारे बिल्स पे अब अगेन वही चीज करेंगे, इस पूरे सीजीएसटी और एसजीएसटी के बिल्स को टोटल करेंगे और जितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 21919, ये एज इट इज अमाउंट अब यहाँ पे डालना है। बट आपको हमेशा याद रहेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आधा आधा डिवाइड रहता है। उसका क्या लॉजिक है, नॉर्मली जैसे आधा आधा डिवाइड करेंगे तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे सीजीएसटी में और आईजीएसटी में। जो 2191.9 है, अब हमें देखना है कि इन दोनों का जो टोटल है, ये टोटल हमारे को सेम आना चाहिए जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 21919.62। अब यहाँ पे भी 21919.62। तो ये ऐसे करके हमारा डिवाइड हो जाता है। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें अब मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने आईजीएसटी को डिवाइड करा, सेकंड पार्ट में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को डिवाइड करा। अब हमारा डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है, या फिर जो डिवाइड करने का है एक स्टेट के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको टोटल करते हैं कि इस पूरे का टोटल, यानी कि इस पूरी शीट में जितना टोटल मैंने वैल्यू टैक्स का रखा है, वो टैक्स मेरे इनवॉइसेस में भी होना चाहिए, राइट। उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो एरर शो कर देगा। तो इन तीनों का जो टोटल है 29316, विच शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं अभी फिल्टर हटा लेता हूँ आपके लिए दोबारा से, जिसमें मैं आईजीएसटी और सीजीएसटी को दोनों को ले लेता हूँ। अब जो आपका टोटल आना चाहिए वो यही आना चाहिए, जो आपको मैंने नीचे आपके लिए कर भी रखा है, 2129316.35। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा एज इट इज मैच हो चुका है। अब ये 3 चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक स्टेट को इस पूरी शीट से, मतलब जो इज माई जीएसटी के लिए आपको जो अपलोड करना है वो ये शीट है जो भी आपके सामने ओपन है। इसके बैक कैलकुलेशन में मैंने जो शीट तैयार करी है आपके लिए, तो ये कितना इजी तरीके से आपको बस एक बार फॉर्मूलास लगाना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद सिर्फ आपको फिल्टर के तरीके से आपको अमाउंट पिक करना है और डालते जाना है। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कितना इजी कैलकुलेशन हो सकता है आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अभी 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 अगर एक डाउट है हमारे यहाँ पे, अभी मेरे को क्वेश्चंस में दिख रहा है कि आपने आईजीएसटी को तो बता दिया, मतलब आईजीएसटी इन द सेंस कि मेरे स्टेट से दूसरे स्टेट में डालना तो आपने बता दिया। सेकंड जो एक आता है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है हर पर्सन के लिए, बट वो हमारे लिए नहीं है अभी के लिए चैलेंजिंग, क्योंकि हमने शीट रेडी कर ली है। अब हम लोकल टैक्स को डालेंगे लोकली में, यानी कि आपका जो खुद का जीएसटीएन है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जीएसटीएन नंबर चेंज कर लेता हूँ, स्टेट कोड 33 कर लेता हूँ, जिसको लेके हमने चला था तमिलनाडु का, राइट। दिस इज द 33 जीएसटीएन। इसी के बेस पे हमने अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें अमाउंट कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो लोकल है, इसके अंदर तीनों टैक्स भी आपको शो कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरी कैलकुलेशन शीट में। अब मैं यहाँ पे तेलंगाना वाले स्टेट पे आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा कलर आउट कर देता हूँ। ये जो 3 कॉलम है मेरे स्टार्टिंग के, मैंने तेलंगाना के लिए रखे हुए हैं, राइट। अब तेलंगाना में रहेगा कि आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। ये सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि ये लोकल स्टेट है, आपने इसी पे ही बिलिंग सारा लिया है, और यही आपका एक आईएसडी का जो आईएसडी का जो जीएसटी है वो आपका यही है। अब आपको समझना है कि सिंपल सा, अब मैं सारा कुछ कैलकुलेशन कर चुका हूँ। सिंपल हम फिल्टर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम अपनी इज माई जीएसटी शीट पे चलते हैं, और मैंने आपको जो कॉलम बताया, इस कॉलम में वही वाला इनपुट आएगा जिसमें आईजीएसटी बिल होगा। तो हम यहाँ पे आके सिर्फ फटाफट से आईजीएसटी बिल को अपना सर्च करेंगे कि आईजीएसटी बिल का टोटल क्या आना चाहिए, आगे जाके कैलकुलेट करके पोर्शन वाइज। तो ये पोर्शन वाइज मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, 39717, यही मेरा आईजीएसटी में आना चाहिए। सेम अमाउंट मैं यहाँ पे पिक करके डाल दूंगा। सेकंड, अभी आपको इससे पहले
किसी और स्टेट के लिए मैंने जो ऑरेंज वाले कॉलम है उनको बताया था। अब लोकल टैक्स के लिए आपको एक्स और डबल ए कॉलम का यूज करना है जिसपे येलो कलर है, ठीक है। अब येलो कलर में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा क्या है, फिल इन केस वेयर सेम स्टेट रजिस्टर्ड, राइट, जिसपे सेम स्टेट रजिस्टर्ड है, यानी कि मेरा ही रजिस्ट्रेशन है और मेरे को ही सामने वाली पार्टी भी सेम स्टेट की है। तो आपको सिंपली ये वाला अमाउंट उठा लेना है, SGST डिस्ट्रीब्यूटेड एस SGST। तो आपको कौन सा अमाउंट उठाना है, मैं अब आपके लिए नेक्स्ट चलता हूँ, जिसमें मेरे को IGST को हटाना है और CGST को लाना है। तो मैं CGST का टोटल कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि मैंने नीचे भी किया हुआ है, विच इज 58849.3, राइट। इसी कॉलम में आपको एज इट इज ये अमाउंट डाल देना है। सेकंड CGST वो भी कॉपी पेस्ट रहता है, मतलब दोनों सिस्टर्स हैं कि एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, तो इसमें आपको सेम कॉपी पेस्ट करके डाल देना होता है। सेम नंबर आपने डाल दिया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है टोटल बिल्स का, जिसमें कि IGST भी है, CGST भी है जो सामने से आया, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने खुद के स्टेट्स में। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको दो डिस्ट्रीब्यूशंस करके दिखाए, कि दो स्टेट्स को फिलअप करके दिखाया कि कैसे कैसे रहता है। आई होप आपको काफी ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो शीट है ये क्लियर हो चुका है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए, मेरे को लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो चुका है, काफी कुछ आपको समझ आ गया है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। मैं आपको ये कलर आउट करके पूरा शीट सबको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी कि आपको इजी रहेगा कि कैसे कौन सा अमाउंट किस में डालना है। अब मैं लास्ट स्टेज पे आता हूँ, जिसमें एक मिनट मैं एक बार ना लॉग इन कर लेता हूँ। ये अभी हमने ना रिसेंटली एक फीचर डाला है, जिसमें कि आप मतलब स्टैंड बाय पे रहते हैं, कभी मेरे को बाहर जाना पड़ गया, तो स्टैंड बाय पे आपका सिस्टम, यानी कि टैक्स सेविंग जो काम है, जितना भी कंप्लायंस का काम है, आपका कोई और यूज ना कर ले, तो उसके लिए हमने एज अ सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाया हुआ है। मैं एक बार दोबारा से GST में आ जाता हूँ। लास्ट स्टेज जो हमारा है वो है GST 6 में जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जिसमें हमको मैच मेकिंग करना है, यानी कि क्रॉस ITC यूटिलाइजेशन को हमको मैच करने का टाइम है। अब हमने देखा टोटल ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इतना जो अमाउंट है ये टोटल अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। और एलिजिबल कितना है, उसके बाद नीचे का जो टेबल है ये आपका मैच करना चाहिए ऊपर से, राइट। अभी मैंने सारा डेटा अपलोड कर दिया है, विच इज ITC डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST, विच इज दिस वन। ये जो 18 का जो फिगर आ रहा है, ये आ रहा है इन तीनों को टोटल करके, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ITC डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST, तो मैं आपको खोलता हूँ ITC डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST, विच इज टोटल ऑफ दिस, तो 76946, और आपका टोटल इससे मैच करना चाहिए, तभी आपका ये डेटा पूरा अपलोड होगा। सेकंड SGST ITC डिस्ट्रीब्यूटेड एज CGST, तो IGST के अंदर ही हम CGST को चेक करेंगे और SGST को चेक करेंगे। तो ये वाला जो अमाउंट है आपका, ये आपका अमाउंट टोटल होना चाहिए 55163.14, राइट। ये वाला जो ऑरेंज वाला कॉलम है ये इसके टोटल में मैच होना चाहिए आपका। अगेन सेम SGST का भी ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ITC डिस्ट्रीब्यूटेड एज CGST, जो हमने लोकल डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो लोकल के लिए हमको ये येलो वाले कॉलम पे आना है, तो इसका जो टोटल है ये टोटल हमें वहां पे शो होना चाहिए इतना, और ये CGST में ही रहेगा क्योंकि ये लोकली डिवाइडेड है। सेम इसी की तरह से SGST, तो SGST का अमाउंट जो इधर रहेगा, तो ये हमारा पूरा मैच होना चाहिए। अभी क्रॉस पजल है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी आपका टोटल मैच होना चाहिए और वर्टिकली भी आपका दोनों टोटल मैच होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे ऊपर दोनों वैल्यू को, तो ये आपका टोटल इससे मैच करेगा। अगर आपका ये टोटल लास्ट वाला मैच करेगा, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ITC डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कितना किया, ये मैच हमारा करना चाहिए इस वाले कॉलम से कि ITC अवेलेबल कितना था। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द कैलकुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल ITC अवेलेबल कितना है और उसको मैच कितना होना है, ये दोनों मेरा एग्जैक्ट पाई टू पाई मैच होना चाहिए, जिसमें आपको राउंड फिगर का भी डिफरेंस नहीं देना है। राउंड फिगर का अगर आपका डिफरेंस आएगा, जो हमें राउंड फिगर के डिफरेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, वो राउंड फिगर का डिफरेंस गवर्नमेंट पोर्टल पे एडजस्टेबल नहीं है, वो आपको फाइल नहीं करने देगा अगर वो राउंड फिगर डिफरेंस आएगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जितना मेरे को टैक्स मिला, राइट, मेरे को एक स्टेट में मेरी कैलकुलेशन की वजह से मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसकी वजह से वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना मिला उतना ही मेरे को आगे देना है। अगर मैं वो पैसों में भी बात कर रहा हूँ तो उसमें भी, राइट।
तो ये जो मैंने आज आपको दिखाया है मेरा पूरा क्लासिफिकेशन था। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि GSTR 6 जो हमारे इसमें GST पे है एक पूरे स्मूथ प्रोसेस के साथ है, जिसमें आप देख सकते हो कि अपलोड करना है, देन व्यू करना है, देन रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन करते ही आपका GSTR 6 का पूरा ये हो जाएगा। आपने अपने साथ में एक जो मैंने कैलकुलेशन शीट दिखाई है वो आप ऑलरेडी तैयार रखोगे, उसके बेस पे आप अपना पूरा फिगर डाल सकते हो, जो बहुत ही जल्दी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको हर महीने नहीं करना है, मतलब हर महीने आपको ये फिगर्स डालना है, बट ये शीट जो आपको बनानी है वो हर महीने नहीं बनानी है, एक बार बनाना है, पूरे साल के लिए आपका टर्नओवर उस तरीके से वो सेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको मतलब अभी आपको सारा कुछ दिखा चुका हूँ, एक छोटी सी चीज है, उसके बाद में अपना जो वेबिनार आज का जो हमारा एजेंडा है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हमने लेटेस्ट फीचर किया है GSTR 6 एनुअल रिकंसिलिएशन भी आपके पास है। अभी हम मंथली करते थे रिकंसिलिएशन, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मंथली करा हमने, मंथली के बाद भी हमारे बहुत सारे इनवॉइसेज हैं जो लेफ्ट आउट रह जाएंगे, उनका कैसे करें? GSTR 6 को गेट करेंगे, रिकंसिलिएशन को हम गेट करेंगे पूरा साल के बेस पे। एनुअली हम परफॉर्म रिकंसिलिएशन करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप लोगों ने देखा हो जो इसमें जैसे यूज करते हैं, जिसमें हमने एडवांस लॉजिक्स लगाए हुए हैं। आप जैसे भी हमारी यहाँ पे क्वेरी रेस करेंगे, आपको सारे एडवांस लॉजिक समझाए जाएंगे कि कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, कैसे ये लगते हैं, क्या क्या इनको लगने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे पूरे डेटा पे। उसके बाद आप रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट में अगेन आप इस व्यू से तो अच्छे से समझदार होंगे। आई होप माय स्क्रीन अभी मैंने Not वो visible, not visible. चली गई है, तो मैं अपना वेबिनार यहीं पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ अभी आपको शो कर चुका हूँ। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग और थोड़ा सा ये देखने के लिए, थैंक यू। So you are open for any questions if you want to share any questions or anything, so you are open on in the chat screen box. So we will wait for 1 minute, then we will close this session. If you have any queries, you can drop a mail to us and we will happy to help you. Thank you guys. Thank you, Gagan. Thank you, everyone. So if you guys have any query or any concern, you can put up on the question answer box, or else you can give your queries on our Ask for Demo page on our website, Genesys website. Thank you all the attendees, all the speakers and the panelists for today's webinar. Thank you, everyone. Thank you for your presence for today's webinar. Thank you everyone.